Hello students, welcome to the virtual class of Gyan Manjari Vidyapit Mova. I am Prashant Bhatt, your teacher for SS. So, students, up to now you had been studying into the standard 6, 7 and 8 and you had been studying about the three different modules of SS. The first module was history, the second was SPL and the third one was the geography. So, up to now you were studying three different modules, but from this year, from this ninth standard, you are going to study the four different modules. And the fourth another module is the economics. So now onwards, you will study about the history, the SPL, the geography, as well as the economics. But in today's session, we are going to start with geography, and we are going to learn the first chapter of that. So at first, let us revise certain things of last 2-3 years of the study of the SS and especially into that the study of the geography. Up to now we have studied about the India, the soil and water resources, the natural vegetation, the wildlife, agriculture, industries and human resources. Right? These all are the topics has been covered into the geography unit up to now into the standard 6, 7 and 8. But now from this year, in this unit, we are going to start the first unit, and in this unit, we are going to focus on India, its location, physiographic divisions, rivers and population. These are the things we are going to include in this unit 1. Right, this unit also has a lot of map work which will be very relevant of your board exams. Right, into the 10th standard, you will be facing many map works in the board examinations. Right. So it becomes very much important to study about this because in 10th standard you are going to face the map work into the final examination. Board exam के अंदर आपको भी map work करना पड़ेगा, right? ऐसे questions आएंगे जो आपको map में define करने होंगे, तो उसके लिए भी ये topic, ये जो unit है आपका, ये बहुत ही important रहता है, right? So, an understanding of this unit will also form a basis for the topics that you study in class 10 and basically ये हमारा एक base रहेगा for class 10, right? Class 10 की जो हम geography पढ़ने वाले हैं, right? तो class 10 के लिए ये unit जो हमारा है वो एकदम base बन के रहता है, ये हमारा basic clear करेगा. तो आपको अभी जब आप लेक्चर स्टडी कर रहे हो तो आपका जो सोशल साइंस का एसबी है, राइट, और आपका जियोग्राफी का नोटबुक है वो हाथ में रखना है, राइट. यू आर सपोज टू कीप इट विथ यू एंड यू आर सपोज टू नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हाट यू फील, राइट, हाउ टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स. whenever you feel like noting down something, you can just pause the video and note down whatever is shown on the screen, right. So today we are going to start the chapter number 1 and that chapter number 1 says India, its size and location, right. इंडिया का साइज क्या है, उसका लोकेशन क्या है, राइट. ये सारी चीजें हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं एंड दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू रन विथ आवर फर्स्ट यूनिट एंड द फर्स्ट चैप्टर एंड द फर्स्ट लेक्चर. सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट इंडिया साइज एंड लोकेशन. So students, in this chapter we are going to focus on learning about India's size and location, its latitudes and longitudes, right. So I hope that you guys know very well that what is called the latitudes and what is called the longitudes, right. तो उसके हिसाब से हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि इंडिया की साइज क्या है और इंडिया का लोकेशन क्या है, राइट. तो इंडिया का जो लोकेशन है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के मुकाबले, राइट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के रिलेशन में इंडिया का जो हमारा लोकेशन है उसको हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे. सो मे बी अगर आपके पास कोई वर्ल्ड मैप है तो आप उस वर्ल्ड मैप का यूज कर सकते हो हम जो आगे सीखने जा रहे हैं उसके लिए. तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई वर्ल्ड मैप है तो आप क्लियरली देख पाएंगे कि सबसे पहले तो हमारा जो इंडिया है इट इज सराउंडेड बाय द इंडियन ओशन, राइट. सो ईस्ट साइड, वेस्ट साइड और द साउथ साइड, दिस ऑल साइड्स आर वेरी वेल सराउंडेड बाय द इंडियन ओशन. उनके तीनों साइड पे, राइट, यानी कि हमारा आधा इंडिया जब खत्म होता है गुजरात से, यहाँ से शुरू होता है, फिर नीचे से जाकर पूरे ईस्टर्न पार्ट तक जहाँ भी आप देखोगे, राइट, हमारा देश पूरा इंडियन ओशन से कवर्ड है, राइट. उसका पूरा सराउंडिंग इंडियन ओशन का है, राइट. दूसरी बात, इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विद रिस्पेक्ट टू द इक्वेटर. हमारा जो इक्वेटर है यानी कि पूरे अर्थ को जो दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसमें जो नॉर्थ साइड है, राइट,
तो हेमिस्फीयर में हमारा जो नेशन है वो नॉर्दर्न साइड में आता है। इंडिया लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर विद रिस्पेक्ट टू द प्राइम मेरिडियन। जो प्राइम मेरिडियन है, राइट, यानी कि जो वर्टिकली हमारे अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, राइट। इक्वेटर which is the center line which divides the world into two different parts, right, horizontally, यानी कि आधे आधे दो हिस्से जो कर देते हैं, राइट, तो उसको हम इक्वेटर बोलते हैं। उसमें हम नॉर्थ साइड पे हैं। और अगर हम मैप को क्लियरली देखें तो हमारा जो प्राइम मेरिडियन है तो उसके इस साइड में हमारा कंट्री आता है। इंडिया लाइज इन साउदर्न पार्ट ऑफ द कंटिनेंट ऑफ एशिया। हमारा एशिया का जो कंटिनेंट है, हमारा जो एशिया महाद्वीप है, उसके सॉरी उसके साउदर्न पार्ट में, राइट, उसके एकदम दक्षिणी यानी कि नीचे के पार्ट के अंदर, राइट, हमारा इंडिया लोकेटेड है। इंडिया लाइज टू द वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की वेस्ट के तरफ हमारा इंडिया है। और इंडिया लाइज टू द ईस्ट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के ईस्ट की तरफ, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीच में हमारा जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसमें साउदर्न पार्ट के अंदर, राइट, हमारा इंडिया लोकेट है। तो ये होगी हमारी सबसे पहली लोकेशन ट्रेसिंग ऑफ आवर ओन नेशन। तो गाइस अभी हम देखने वाले हैं कि इंडिया की लैटिट्यूड्स क्या है और लॉन्गिट्यूड्स क्या है, राइट। सो नाउ वी नो वेयर इंडिया लाइज इन रिलेशन टू सम कंटिनेंट्स एंड वाटर बॉडीज। तो हमारे जो अलग अलग जल प्रवाह है, यानी कि हमारे जो भी ओशंस है वो सारे वाटर बॉडीज में, और बेसिकली अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में हमारे देश का स्थान क्या है वो जब हम जान गए तो आगे हम देखेंगे, हम डिटरमाइन करेंगे इंडिया का एब्सोल्यूट लोकेशन, यानी कि हमारे इंडिया का लोकेशन अभी एग्जैक्टली कहाँ पे है, राइट। सो दिस मीन्स दैट वी विल डिटरमाइन द डिग्री ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ऑफ इंडियाज बाउंड्रीज। हमारे इंडिया की जो बाउंड्री है, राइट, तो कौन से लैटिट्यूड और कौन से लॉन्गिट्यूड में हमारा नेशन लोकेटेड है वो हम डिटरमाइन करने वाले हैं, राइट। तो अभी आगे हम ये सीखेंगे कि वो हम कैसे करेंगे, हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को कैसे स्टडी करेंगे, ये हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन में एक मैप दिखाई दे रहा है आपको, राइट। तो आपको जब आप इस मैप को गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स दिखते हैं। सो ऑल द पार्ट विच आर शोन ओवर हियर, राइट, इन दिस ओवल, these all are called the longitudes, and over here whatever you see the oval, right, in the vertical oval whatever you see is the latitude, right। तो इसे हम हमारा latitudes और longitudes कहते हैं। तो उसकी मदद से हम कैसे मेजर करेंगे तो ये देखते हैं। अगर हमें latitudes मेजर करना है तो हमारे रूलर को, राइट, रूलर यानी कि हमारे पास जो स्केल है उस स्केल का हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो कैसे हम लैटिट्यूड को यूज करेंगे, तो सबसे पहले हमें रूलर और पेंसिल को हमारे पास रखना है, राइट, और उसके रखने के बाद हमें हॉरिजॉन्टली यानी कि ऐसे, राइट, पूरे हॉरिजॉन्टली हमें रूलर को हमारे मैप के ऊपर रखना है। अगर आप कोई भी मैप देखोगे तो ये जो हमें डिग्रीज यहाँ पे दी है, राइट, हमें कोई ऐसा मैप चूज करना है कि जहाँ पे हमें ये डिग्री दिखाई दे, राइट। तो ये जो हमें 100, फिर 95, 90 रूलर के नीचे जो हमें माइल्ड कलर्स में जो दिख रहा है वो सारे डिग्री के साथ में जो हमें मैप मिले वो मैप हमें चूज करना है, राइट। और फिर हम उस रूलर को ऐसे हॉरिजॉन्टली रखेंगे ऑन द टॉप प्लेस, राइट, कि जिसकी मदद से हम लैटिट्यूड को जान पाए। और फिर रूलर को ऐसे प्लेस करने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले हम रूलर को जब हमने प्लेस किया, राइट, तो फिर हमारे देश का जो टॉप नॉच कॉर्नर जहाँ पे आता है वहां पे हम रूलर को प्रेस करेंगे, राइट। यानी कि हमने रूलर को यहाँ पे रखा है जहाँ पे हमारी ये J&K का जो ग्रीन पोर्शन है वो एंड हो रहा है, और फिर कोई एक कॉर्नर में हम ऐसे एक डॉट से उसको मार्क कर लेंगे हमारी पेंसिल से, राइट। यहाँ पे जो रेड डॉट दिखाया है, राइट, दैट इज अ पार्ट कि जहाँ पे हम मार्क करने वाले हैं। तो चेक वेयर इट लाइज अगेंस्ट द लैटिट्यूड स्केल शोन ऑन द लेफ्ट और राइट बॉर्डर। लेफ्ट और राइट बॉर्डर में कहीं पे एक जगह पे हम देखेंगे तो दोनों जगह पे हमें 35 डिग्री यहाँ पे दिख रहा है, राइट। तो वहां पे ये कहाँ पे एंड होता है हमारे कंट्री का अपर बॉर्डर, उसको हम यहाँ पे एग्जैक्टली ट्रेस करने वाले हैं, उसको हम यहाँ पे मार्क करने वाले हैं, राइट। आफ्टर पुटिंग दैट, mark the end points of the ruler at the corner on the latitude markings using a pencil। latitude marking के जो कॉर्नर है वहां पे हम उसको मार्क करेंगे, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया। यहाँ पे आपको जो रेड डॉट दिख रहा है, राइट, उस रेड डॉट के हिसाब से हम पेंसिल से वहां पे मार्किंग करने वाले हैं। एक बार वो मार्किंग हो गया
देन वी नीड टू राइट द अप्रोक्सीमेट मेजर ऑफ द लैटिट्यूड। फिर ये लैटिट्यूड का कौन सा मेजर है वो अप्रोक्सीमेटली हमें उसको काउंट करना है। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें, सो द गैप इज ऑफ 30 to 35, तो यहाँ 35 से थोड़ा ऊपर है तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली 37 मार्क कर सकते हैं। सो दैट इज हाउ we come to know that the northmost latitude of India is about 37 degree north. So it is said that we are into the 37 degree north. North means it is from the upper part of the equator, right? Equator is for 0 के ऊपर जो जाएगा वो नॉर्थ में जाएगा, और इक्वेटर से नीचे जो दिखाई देगा वो हमारा साउथ होगा। तो हमारा जो टॉप नॉच पार्ट है, राइट, जहाँ पे हमारा J&K का बॉर्डर खत्म होता है, जहाँ पे हमारे देश का आखिरी बॉर्डर आ जाता है नॉर्थ का, तो जो नॉर्थ की हमारी जो टिप है यहाँ पे, राइट, लेट मी मार्क इट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ये जो हमारी टिप यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है, एग्जैक्टली दिस वन, तो ये टिप हमारी जो है, यहाँ से हमने रूलर रखा और सीधा यहाँ पे कॉर्नर में हमने मार्क कर दिया, एंड द मार्क इज सेट फॉर द एंड ऑफ द नेशन, और ये हमारा लैटिट्यूड हो गया 37 डिग्री नॉर्थ, राइट। तो ये हमने सबसे पहले तो लैटिट्यूड को मेजर कर लिया। नाउ इट इज द टाइम टू मेजर द लॉन्गिट्यूड, राइट। तो लॉन्गिट्यूड मेजर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस हमें एक रूलर और पेंसिल हमारे हाथ में रखना है, राइट। फिर मैप के ऊपर हम रूलर को ऐसे वर्टिकली प्लेस करेंगे, राइट, ताकि हम ये जो परफेक्ट पॉइंट्स है, राइट, बिटवीन 70, 75, 80, 85, ये जो हमारी स्टैंडिंग लाइन है वो हमारे लॉन्गिट्यूड्स बनेंगे, राइट। तो लॉन्गिट्यूड में एक्जैक्टली कहाँ पे बिलोंग करते हैं वो हम देखते हैं। तो रूलर को हमने वर्टिकली प्लेस किया, राइट। सो ऑन द टॉप ऑफ द प्लेस फॉर विच वी नीड टू नो द लॉन्गिट्यूड, राइट। हमें लॉन्गिट्यूड जानने के लिए सबसे पहले तो हमारे प्लेस के टॉप के ऊपर हमें रूलर को रखना पड़ेगा। उसके बाद टू मेजर द लॉन्गिट्यूड्स, चेक वेयर इट लाइज अगेंस्ट द लॉन्गिट्यूड स्केल शोन ऑन द टॉप ऑफ द बॉटम बॉर्डर, राइट। तो सबसे टॉप या फिर बॉटम बॉर्डर जहाँ से हमें लॉन्गिट्यूड नजदीक पड़ता है वहां पे हम स्केल से मेजर करेंगे कि एग्जैक्टली कहाँ पे वो प्लेस करता है, राइट। तो वो देखने के बाद हम यहाँ पे भी ऐसे ही एक एंडिंग पॉइंट को मार्क करने वाले हैं पेंसिल से, राइट, जो रेड डॉट हमें यहाँ पे दिखाया गया है। तो ऐसे ही हम मार्क करेंगे। तो पेंसिल से ऐसे मार्क करने के बाद हम उसका भी अप्रोक्सीमेट मेजर लिखेंगे लॉन्गिट्यूड का। तो ऐसे में पता चलता है कि ये हमारा 68 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट है, राइट, क्योंकि हमें ये भी पता है कि प्राइम मेरिडियन से हमारा कंट्री जो है वो ईस्टर्न साइड में है, राइट। सो इट विल बी नोन एज द 68 डिग्री ईस्ट। तो अगर यहाँ पे आप देखो तो इट इज जस्ट बिफोर 70, सो 1 और 2 पॉइंट वुड बी बिफोर। सो 68 डिग्री जो है वो हमारा गुजरात का बॉर्डर, ये जो हमारा बॉर्डर जहाँ पे एंड होता है, राइट, हमारा गुजरात का ये बॉर्डर जहां पे एंड हो रहा है, राइट, ये जो बॉर्डर हमारा है इट इज सिचुएटेड एट 68 डिग्री ऑफ द ईस्टर्न साइड इन द मैप, राइट। सो ये जो एग्जैक्ट लोकेशन हमने फाइंड आउट किया कि जहां पे हमारा नॉर्दर्न और ईस्टर्न मैच होता है, तो इस ग्रिड को हम मेजर कर सकते हैं 37 डिग्री नॉर्थ and 68 degree east, and that is going to be the exact location of this specific region of our nation's boundary, right. So now you know how to determine the degrees of the latitude and longitude of India's boundaries, right. So यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए बोला है, लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको जब भी हमारा क्लास रेगुलर रहेगा तब मैं दिखाऊंगा, राइट। तो कैसे हम उसको आंसर कर पाएंगे वो मैं आपको तभी बता पाऊंगा। So let's move further. So in further guys, I am going to ask you one question, right? Do you know why has the 82 degree and 30 points eastern is known as the longitude, which has been selected as the standard meridian of India? Standard meridian means the center part of the India. Do you know why? Right. So there are certain reasons about choosing this the standard meridian, right? So 82 degree and 30 east has been selected as the standard meridian of India because the one, India is a vast country stretching across 30 degree of longitude. हमने जो भी longitude find out किए थे, right, यानी कि जो standing gaps हमने जो find out किए थे उसमें 30 डिग्री तक हमारे इंडिया का जो एरिया है वो पूरा स्ट्रेच होता है, right. So this would result in a time difference of 2 hours between the easternmost and the westernmost points of the country, राइट। तो कुछ लॉन्गिट्यूड्स को मूव करने के बाद टाइम डिफरेंस डिफर होता है, राइट। तो अगर हम देखें तो हमारे देश में ईस्टर्न मोस्ट से अगर वेस्टर्न मोस्ट तक जाए, राइट, यानी कि इस पार्ट से लेकर ये जो हमारा लास्ट पार्ट इंडिया का आपको दिख रहा है,
यहाँ से लेकर हम गुजरात का ये जो लास्ट पार्ट है वहां तक हमारे देश को देखें, राइट, तो ये 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड में स्ट्रेच होता है और जिसकी वजह से अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे का टाइम वेरिएंस यहाँ पे देखने को मिलेगा, राइट। सो उसके लिए देयरफॉर देयर वाज अ नीड टू सिलेक्ट अ स्टैंडर्ड टाइम टू यूज अक्रॉस इंडिया। तो हमें एक स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत थी जो हम पूरे देश में एक समान टाइम को चूज कर सके, राइट। 6, 7 और 8 में आपने ये तो पढ़ा ही होगा, right? You must have studied that how the time is being determined between the longitudes and the latitudes, right? So the same thing over here is being applied very well कि होता क्या था कि अलग अलग कॉर्नर जो हमारे देश के हैं, ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड, तो उन दोनों कॉर्नर में टाइम डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे का हो जाता था। अभी एक ही कंट्री के 2 अलग अलग टाइम तो हो नहीं सकते। सो एट दैट टाइम वी नीडेड द स्पेसिफिक टाइम, राइट, अ स्टैंडर्ड टाइम के जो हम पूरे भारत में जिसको यूज कर सके, राइट। सो इसीलिए एक ऐसा सेंटर पॉइंट हमने फाइंड आउट किया 82 डिग्री एंड 30 ईस्ट, एंड दैट इज लोकेटेड ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ द कंट्री। अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारे देश के जितने भी एरिया है ईस्ट और वेस्ट में, राइट, ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ और साउथ को मिला के ये जो हमारा सेंटर पॉइंट बनता है, राइट, तो ये ऑलमोस्ट हमारा सेंटर पॉइंट बन जाता है, and that center point is known as 82 and 30 degree east, right? So that is almost in the middle of the country and so it was chosen as a standard meridian। फिर यहाँ का जो टाइम है उसको हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन बनाया और वही टाइम हम पूरे नेशन के अंदर फॉलो कर रहे हैं, right? So that was the main reason why this particular place 82 degree and 30 east that was selected as the standard meridian of our nation। So guys, in today's session I made you understood, right, about certain things, and the summary of that is the first one, India lies in the northern hemisphere with respect to the equator। अगर हम इक्वेटर की बात करें, एक ऐसा पार्ट जो अर्थ को नॉर्थ और साउथ में 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ये जो पूरा ग्लोब है उस ग्लोब को, उस पूरे ग्लोब को आधे में डिवाइड करता है, तो वो इक्वेटर के नॉर्थ साइड में हमारा नेशन लोकेटेड है, राइट। सेकंड, इंडिया लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर विद रिस्पेक्ट टू द प्राइम मेरिडियन। नाउ प्राइम मेरिडियन it is a thing which is going to divide the globe vertically into 2 parts, right? तो हमारे पूरे ग्लोब में जो सेंटर पार्ट है उसके ईस्टर्न साइड में हमारा इंडिया लोकेटेड है, राइट। इंडियाज मेरिडियन लाइज बिटवीन 8 डिग्री एंड 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री एंड 6 नॉर्थ लैटिट्यूड्स, राइट। तो हमारा लैटिट्यूड क्या है? 8 डिग्री एंड 4 नॉर्थ एंड वहां से लेकर 37 डिग्री एंड 6 नॉर्थ तक हमारा जो पूरा एरिया है वो वर्टिकली, और अगर हम हॉरिजॉन्टली देखें तो हमारा जो कंट्री है 68 डिग्री एंड 7 ईस्ट से लेकर 97 डिग्री एंड 25 ईस्ट तक हमारा पूरा लॉन्गिट्यूड स्ट्रेच है। यानी कि जैसे कि हम सबको पता है इंडिया इज हैविंग द 7th रैंक इन द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया, राइट। अगर एरिया वाइज सारे कंट्रीज को देखा जाए, टॉप नॉच कंट्रीज द हाईएस्ट एरिया से लेकर लोएस्ट एरिया तक जाए, right? So highest area में इंडिया का 7th रैंक है, right? That is the land area of our nation। So the main latitude passing through India is the Tropic of Cancer 23 is to 30 degree north, right? तो हमारा जो नेशन है उसमें से जो मेन लेटिट्यूड जो पास होता है इंडिया से वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। Now 82 degree and 30 east has been selected as the standard meridian of India। It has been chosen as the center point of India so that we can use the specific and standard time around the nation, right? ताकि कोई भी एरिया में आप जाओ आपको एक स्पेसिफिक और एक स्टैंडर्ड टाइम ही मिलने वाला है। So guys, that was all about our first session of the geography। आज हमने पहला जो यूनिट है उसमें से पहला चैप्टर जियोग्राफी का स्टार्ट किया है, राइट। इंडिया, उसका साइज और लोकेशन, उसके बारे में हम बात कर रहे थे आज, और आगे भी हम आगे इसको ट्रैक करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बेसिकली इस चैप्टर का जो मेन इंपॉर्टेंस है वो ये होगा कि यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव लोकेशन ऑफ इंडियाज फिजिकल बाउंड्री। सबसे पहले तो इंडिया की फिजिकल बाउंड्री है, उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है वो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, राइट। उसके बाद आप क्या क्या सीखेंगे इसमें, तो जो आपने अभी तक सीख लिया वो ये है कि आप इंडिया की फिजिकल बाउंड्रीज को मैप के ऊपर लेबल कर सकते हैं, राइट। ये सबसे एक बेहतरीन पार्ट है हमारे लिए समझना। अगर कोई हमें पूछे कि भाई इंडिया का लोकेशन क्या है, वी कैन जस्ट टेक द मैप एंड वी कैन पुट द रूलर ऑन दैट, एंड वो कोई भी आपको अगर लोकेशन बताएगा चलो इस लोकेशन पे मुझे लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स दिखाओ, तो नाउ आई होप दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल, राइट। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन गाइस।
Now afterwards I'm going to send the homework in your group, right? Don't forget to do it. And that's it for today's session. I'm going to meet you in the next session, right, with one new topic and with the rest of the part of this particular chapter, right? So before ending the session, I would like to make a request to all of you, right? Whether you take it as a request or you take it as an advice, right, the matter is yours. But please be careful, guys, because currently the situation is very much worse. So I literally hope that no one of our student from the whole Gyan Manjari campus should face any kind of trouble. So please be careful, please stay in home, don't go outside, and if it is too much necessary to go, that you cannot afford to stay in the home, if there is a situation like that, please use the rules of the social distancing, as well as use the mask and the sanitizer. But all we need is, we need you to be safe in your home, and we need you to be safe health wise, right? So be very much careful, guys, and I really wish all the very best for the next coming year, as well as on the basis of the health. So that's it from my side, guys. I'll see you in the next session. Till then, it's time to take your leave. So goodbye, take care, and have a nice time.